बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज़ में आज जिस मजमून को समझने जा रहे हैं हम वो है साइंस, और यह साइंस ग्रेड 6 के लिए है। इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें शामिल है साइंस 6 की कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की टेक्स्ट बुक। इसके साथ साथ कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको। इस होमवर्क के लिए और कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो है समर पैक ग्रेड 6 के लिए। इसके साथ साथ अगर पेरेंट्स और टीचर किसी किस्म की कुछ रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक ग्रेड 6 के लिए एक बहुत ही यूज़फुल साबित होगा। साइंस का समर पैक और रिसोर्स पैक दोनों कैंटब की वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। द टुडेज लेक्चर इज़ फ्रॉम साइंस ऑफ ग्रेड 6 and we are going to start a new chapter that is about environment and interaction. You all know about the environment. Just define it first. Environment is the sum of all surroundings of a living organisms in which it survives and maintains its life processes. It means everything around us is our environment, whether we take benefit from it directly or indirectly, or it is useless for us. It's part of our environment. There are many factors that make up our environment, and these factors are constant. Every type of environment, whether we are in our room, whether we are in our classroom, whether we are in a desert, at mountains, in a forest, wherever we are, these factors are constant and make up our environment. The nature and the quality of all these factors may be different, but these factors must be there to make up a complete environment to live in. And our today's lecture, that is our lecture 1, is about all these environment or components. Here we'll study the components that make up an environment. The SLO that will be achieved through this lecture are: identify the components of environment. Here we are just to find out what components make up an environment. The environment may be of anywhere. Just look at this picture. What components you might feel that make up this environment? You should enlist them. Yes, plants. There are plants that make up the desert environment, and there are animals like camel we can see, but there are many other microorganisms we cannot see. There are many small animals like snake, like beaver, like scorpions that are found in desert and make up the desert environment. And you have read about all these animals that make up a desert environment. Besides plants and animals, there are many other components that make up or formulate this specific desert environment. And what are those? Light, obviously. Light helps to grow plant. Light helps animals to find their ways. Temperature. Deserts are characterized by hot temperature. A high temperature is the characteristics of deserts. So temperature is another constituting factor. Soil. The soil of sand or desert is sandy. There is sand all around in deserts, so it is also a characteristic feature of deserts. Air, although is very warm, but is a feature of this environment and is present everywhere. Without air, plants cannot exist. Without air, animals cannot breathe. So it is also a prime or the major factor of any type of environment. Now, these two factors that are living, plants and animals, whether they may be of any kinds. Plants may be trees, shrubs, herbs, or any kinds, and animals may be large animals, small animals, insects. These two are living factors. So the living factors of an environment are called biotic factors. Biotic means living, whereas all these are non-living factors of the environment, and these are called non-living or abiotic factors. In desert environment, although there is a little amount, but water is also present. It is also a constituting factor of desert environment. Let's observe another picture. It's a forest environment, but you can see here plants,
animals of any kind. Both these factors may be of any type and kind. Not only we can see here in the picture, but also those plants and animals we cannot see here, just as microorganisms, microplants, many plants that are hidden under these plants. So all these are included in these factors that make up this environment. Plants, animals, and light, temperature is also there. If the temperature would not be suitable, plants and animals could not live there. Soil, ultimately plants gain their nutrients from the soil, so soil is also a characteristic and feature of this environment. Air is also there because living things are present, it means air is there. Water, plants and animals both need water and depend upon water for their life, so it is also the characteristic feature of this environment. Again, we classify plants and animals in biotic factors and light, temperature, soil, water and air into abiotic factors. Observe this picture as well. What you can find here: plants which are in the form of grasses, humans. Although there are animals present in this environment, but we cannot see here as these are microorganisms or insects. Again, we classify them into biotic factors, and the abiotic factors of this particular environment are light, temperature. Temperature is very low as compared this temperature with that of previous pictures, but temperature is there and a deciding factor of this environment. Soil, which is frozen almost, air, which is also very cold, and water. So these are all the factors that make up a particular environment. Although their feature, although their quality, although their nature may be different, but these factors must be there to make up an environment. By the absence of any factor, the environment cannot be complete. Here is a water environment, a pond environment. Here you can also find biotic factors just as plants, some animals, and abiotic factors are light, temperature, air, water, etc. यहाँ पे हमने देखा कि ये जो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स है ये कांस्टेंट हैं किसी भी एनवायरनमेंट के लिए. एनवायरनमेंट कोई भी हो, इन फैक्टर्स में से कोई भी ये तमाम फैक्टर्स ज़रूर प्रेजेंट होंगे. ये अलग बात है कि इनकी नेचर मुख्तलिफ होगी, और यही वो कंपोनेंट्स हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट को बनाते हैं. अब आप अपनी टेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं. टेक्स्ट बुक में पेज 41 ओपन कीजिए तो आपको टॉपिक मिलेगा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. टॉपिक हेडिंग है 4.1. यहाँ पे भी वही दो फैक्टर्स, वही दो क्लासिफिकेशंस हैं एबायोटिक फैक्टर्स की, और पेज 42 पे आपको मिलेगी बायोटिक फैक्टर्स, जो जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था. अब ये हो सकता है कि किसी जगह पे एनिमल्स की जगह, एनिमल्स में लॉयंस की जगह कैट्स हों, लेकिन एनिमल्स तो होंगे, और प्लांट्स में ट्रीज़ की जगह श्रब्स हों या वीड्स हों, लेकिन प्लांट्स तो होंगे वहाँ. सो ये जो सारे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं ये किसी भी एनवायरनमेंट के लिए कांस्टेंट हैं. अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई तो कर लिया आपने सारे एनवायरनमेंट फैक्टर्स. अब हम देखते हैं कि ये सब क्यों ज़रूरी हैं. एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन एसएलओ की डिमांड ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को. ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज होगा कि अगर आपको पता हो कि कोई भी फीचर, कोई भी फैक्टर किसी भी एनवायरनमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है. सो इट वुड बी एन एज. लेकिन बेसिक पर्पज़ ये है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें किसी भी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को. तो लाइट किसी भी एनवायरनमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? लाइट ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है. फॉर एग्जांपल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में भी, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि लाइट की क्वालिटी, लाइट की इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है. इसी तरह लाइट की एक्टिविटी एनिमल्स की एक्टिविटीज़ को भी इफेक्ट करती है. अब आते हैं एयर की तरफ. एयर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है. एयर एनिमल्स के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, और प्लांट्स के लिए इसलिए ज़रूरी है कि ये प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करती है. सो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल देयर. अब सॉइल है. सॉइल में प्लांट्स ग्रो करते हैं क्योंकि सॉइल प्लांट्स को मुख्तलिफ तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है.
इसके अलावा सॉइल एक बेसिक स्ट्रक्चर भी रहती है जहाँ पे एनिमल्स, ह्यूमंस अपने अपने घर बना सकें, अपने डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप कर सकें। इसके अलावा सॉइल एनिमल्स को और प्लांट्स को पानी भी फ्राहम करती है। वाटर एंड टेम्परेचर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स अफेक्टिंग all the living beings because living things depend upon water directly. Living organisms require water for their continued existence. Water is an essential liquid to keep the temperatures of the body at an optimum level. पानी की वजह से ही हमारी बॉडीज का टेम्परेचर कायम रहता है। All our life activities are done with a specific range of temperature. अगर टेम्परेचर स्पेसिफिक होगा तो ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला जाए, बहुत हाई हो जाए या बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। विद अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर, व्हेन टेम्परेचर विल एक्सीड द रिक्वायरमेंट, लिविंग बींग्स विल बी डाई। अब आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि लिविंग है। आप जानते हैं कि लिविंग कंपोनेंट्स को बायोटिक कंपोनेंट्स कहा जाता है। द कंपोनेंट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, फंजाई इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बायोटिक फैक्टर्स, एल्गी, वायरसेस, etc. This component works together with the abiotic components of the environment. अब किसी भी environment में बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन से, कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। अब इनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 different types of living organisms. Just move to the next page. These 3 types are named as producers, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। अब साइंटिस्ट ने क्या किया है कि जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में और फिर डीकम्पोजर्स में। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हैं। प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो फूड प्रोड्यूस करते हैं तमाम किस्म के ऑर्गेनिजम्स के लिए फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तमाम ऑर्गेनिजम्स खा वो डायरेक्टली प्लांट्स कंज्यूम करें या ना करें, लेकिन उनकी लाइफ डिपेंड करती है, उनकी लाइफ रिलेटेड है प्लांट्स की एग्जिस्टेंस के साथ। क्योंकि लॉयन जैसा कि डायरेक्टली प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करता, लेकिन वो उन ऑर्गेनिजम्स को, उन एनिमल्स को एज ए फूड यूज़ करता है जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे। जैसा कि एक लॉयन है वो घास खाने वाले बकरियों को, हरणों को शिकार करता है। सो अल्टीमेटली प्लांट जो लॉयन है उसकी लाइफ भी डिपेंड करती है प्लांट्स पे। अब जो लॉयन है वो कंज्यूमर के तौर पे कैटेगराइज किया जाता है क्योंकि वो कंज्यूम करता है प्रोड्यूसर्स को। सो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी न्यूट्रिशन के लिए ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ये डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। डायरेक्टली कंज्यूमर्स में आ जाते हैं गोट, काऊ और अदर कैटल्स, ठीक है। और इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स में आ जाते हैं लॉयन है, कैट है, डॉग है, जो डायरेक्टली तो प्लांट्स को नहीं खाते लेकिन वो उन ऑर्गेनिजम्स को एज ए फूड यूज़ करते हैं जो कि प्लांट्स को डायरेक्टली यूज़ करते हैं। थर्ड टाइप है बायोटिक फैक्टर्स की डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स ना तो प्लांट्स हैं ना ही एनिमल्स हैं, बल्कि ये बैक्टीरिया हैं या फिर फंजाई हैं, और कुछ डीकम्पोजर्स में अर्थवॉर्म भी शामिल है। इनको डीकम्पोजर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डेड एनिमल्स और प्लांट को डीकम्पोज कर देते हैं। प्लांट्स या एनिमल्स जब डेड एनिमल्स और प्लांट्स में चेंज हो जाते हैं तो इनकी बॉडीज़ को डीकम्पोज कर दिया जाता है और इसमें से मिनरल्स को और डिफरेंट तरह की गैसेस को दोबारा एनवायरनमेंट में रिटर्न कर दिया जाता है। द मिनरल्स प्रेजेंट इन दोज डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड इन द सॉइल। अब ये जो मिनरल्स सॉइल में रिटर्न किए जाएंगे, प्लांट्स इनको दोबारा कंज्यूम कर लेंगे, ये ज़मीन का या सॉइल का पार्ट बन जाएंगे और ज़मीन या इस सॉइल में अगर प्लांट्स ग्रो किया जाए तो ये तमाम न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स दोबारा से हासिल कर लेंगे। इन दिस वे द फ्लो ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कंटिन्यू इन द एनवायरनमेंट। और हमारा ये साइकिल इसी तरह से चलता रहता है। यानी आपने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, इसी तरह नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी यानी एबायोटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट होते हैं बायोटिक फैक्टर्स की एक्टिविटीज़ की वजह से। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या है। अब आ जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। होमवर्क आप अपना करेंगे पेज 46 और इसका रिमेनिंग पार्ट आपको मिलेगा पेज 47 पे। टेस्ट एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 है। टेस्ट एक्सरसाइज 1 का फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से दुरुस्त जवाब को इंतखाब करना है।
नंबर 1 क्वेश्चन है चूज नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। 4 किस्म के ऑर्गेनिजम्स आपको बताए गए हैं, आपने इनमें से उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, जो अपना फूड खुद नहीं प्रिपेयर कर सकता। क्या वो लाइट है, एयर है, माइक्रोब्स हैं या सॉइल है? ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप स्टेटमेंट को गौर से देखिए, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग फैक्टर्स जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। सबसे पहले तो आपने ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना है, और जब आप ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई कर लें फिर आप उनमें से डिसाइड कीजिएगा कि इनमें से नॉन फोटोसिंथेटिक कौन सा ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। व्हाट विल हैपन इफ द टेम्परेचर विल एक्सीड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल से एक्सीड कर जाए तो किसी भी एनवायरनमेंट पे क्या असर होगा? मोर फूड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करेंगे। मोर प्लांट्स विल बी ईटन बाय एनिमल्स, या एनिमल ज़्यादा फूड खा जाएंगे। देयर विल बी मोर रेनफॉल, या बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी। ऑल लिविंग बींग्स विल डाई, तमाम किस्म की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। जो भी राइट आंसर हो आप उसका सर्कल फिल करेंगे। नंबर 4 क्वेश्चन आप देखें, अ गोट फॉर इट्स न्यूट्रिशन विल डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय। गोट को अपनी फूड कहाँ से मिलती है? ग्रीन प्लांट से मिलती है, या वो एल्गी खा के ज़िंदा रहती है, या वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया खा के ज़िंदा रहती है, या फिर वो ये तमाम चीज़ें खा के ज़िंदा रहती है? बहुत ही आसान सवाल है, आप इजीली इसका क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाइए पेज 47 पे पार्ट बी की तरफ, जो कि टेस्ट एक्सरसाइज 1 का हिस्सा है। यहाँ पे है आंसर दीज क्वेश्चंस ब्रीफली। आपने क्वेश्चंस को ब्रीफली आंसर करना है, 3 से 4 जुमलों में इसका आंसर वाइंड अप करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे। एनलिस्ट द एबायोटिक फैक्टर्स दैट फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम या किसी भी एनवायरनमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स को आपने एनलिस्ट करना है, जस्ट एनलिस्ट करना है, इसको एक्सप्लेन नहीं करना। सवाल को गौर से पढ़ा करें और फिर इसको आंसर किया जाएगा। यहाँ पे सवाल की डिमांड सिर्फ एनलिस्ट करने तक है। नेक्स्ट आ जाए रिव्यू एक्सरसाइज पे, जो कि पेज 51 पे आपको मिलेगी। यहाँ भी पार्ट 1 पार्ट ए है, इसका MCQs हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपने करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर अ पॉन्ड इन विच अ फिश और एल्गी हैज़ टू सर्वाइव एंड मेंटेन इट्स लाइफ प्रोसेस। आपने कलेक्टिव टर्म बतानी है कि अगर एक फ़िश और एल्गी एक सर्वाइव में, एक पॉन्ड में सर्वाइव कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? क्या ये वो एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, क्या वो एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, क्या वो बायोस्फीयर डेवलप कर रहे हैं, या बायोम डेवलप कर रहे हैं? आप टिडबिट्स में दिए गई इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि टेक्स्ट बुक से, तो आप इजीली इसका क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रॉम वेयर अ कंज्यूमर गेट्स इट्स फूड एंड एनर्जी। कंज्यूमर अपना फूड कहाँ से हासिल करता है? होस्ट से, प्रे से, पैरासाइट से, या कार्निवोर से? जहाँ से भी लेता है आप उसको मार्क करेंगे। फिर आ जाइए पार्ट बी की तरफ। यहाँ से आप डिफाइन इकोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इकोलॉजी की डेफिनेशन पेज 41 पे आपके टिडबिट में वाले सेक्शन में दी गई है। फिर आप पार्ट सी देखेंगे। पार्ट सी में है हाईलाइट द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। आपने एक एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट्स को एनलिस्ट करना है और 1 to 2 सेंटेंसेस में उसको एक्सप्लेन भी करना है। अब आ जाइए अपने समर पैक में की तरफ। समर पैक का पेज 38 ओपन कीजिए। यहाँ पे आप एक्टिविटी 4.1 सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्टिविटी सॉल्व करने से पहले आप इसका ये ऊपर वाला सेक्शन भी सॉल्व करेंगे, जिसमें दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने लोकेशन बतानी है कि आपका पर्टिकुलर SLO जो कि था आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, किस जगह पे एड्रेस किया गया है। आप पेज नंबर बताएंगे, हेडिंग नंबर बताएंगे, और उसके बाद आप इस SLO का पर्पस पढ़ेंगे कि ये SLO आपके लिए स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप एक्टिविटी 4.1 सॉल्व करेंगे। एनलिस्ट द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स विच यू नो इन योर डेली लाइफ एंड राइट देयर रोल इन द एनवायरनमेंट। आपने अपनी डेली लाइफ में, यानी जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को एनलिस्ट करना है, और ये भी बताना है कि वो फैक्टर आपके लिए किस तरह से ज़रूरी है। जैसा कि आपको हिंट दिया गया है कि एयर इज़ एन एबायोटिक फैक्टर एंड इट इज़ नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, यानी आपके एनवायरनमेंट में जो एयर है वो एक एबायोटिक फैक्टर है और ये रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं एयर में और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 तमाम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स को बताएंगे और उस पर्टिकुलर फैक्टर का इन्फ्लुएंस भी बताएंगे अपनी लाइफ में। इसके बाद आ जाइए अपने SLO बेस्ड MCQs की तरफ, जो कि आपको मिलेंगे पेज 42 पे। MCQ नंबर 1 सॉल्व करेंगे आप हैबिटेट इज डिटर्मिन्ड बाय बायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स
मैन मेड फैक्टर्स या बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। अब हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट एक लिविंग प्लेस है ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है वहाँ से प्रोटेक्शन लेता है, वहाँ से फूड लेता है, शेल्टर लेता है, उस जगह को हैबिटेट कहते हैं। और हैबिटेट को कौन से फैक्टर्स बनाते हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं और फिर उनकी रीज़न भी बतानी है कि आपने उस पर्टिकुलर ऑप्शन को क्यों चूज़ किया था। आप पेज 43 ओपन करेंगे, यहाँ से आप MCQ नंबर 8 सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिटर्निंग नाइट्रोजन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू सॉइल। सॉइल में ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज नाइट्रोजन और उसके कंपाउंड से मिलकर बनी है। जब ये ऑर्गेनिजम्स डेड ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं तो नाइट्रोजन वापस सॉइल को रिटर्न कर दी जाती है। तो ऐसा कौन करता है? क्या वो प्रोड्यूसर्स करते हैं, क्या कंज्यूमर्स ऐसा करते हैं, या डिकम्पोजर्स करते हैं, या प्रेडेटर्स करते हैं? जो भी सेक्टर, जो भी क्लास डेड ऑर्गेनिजम्स में से की बॉडीज में से नाइट्रोजन लेकर सॉइल को रिटर्न करती है, आपने उसको मार्क करना है और उसकी रीज़न बतानी है। अब आ जाइए पेज 45 पे, जहां आपको एसएलओ बेस्ड MCQs मिलेंगे। आपने अपने एसएलओ से रिलेटेड MCQ फाइंड आउट करना है और उसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ वाटर एन इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट। पानी एबायोटिक फैक्टर कैसे है और इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर कैसे है किसी भी एनवायरनमेंट का, आपने रीज़न बतानी है। क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करेंगे, डिफाइन एनवायरनमेंट, हाउ इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनवायरनमेंट को हमने डिफाइन भी किया और इसकी इंपॉर्टेंस भी स्टडी की, सो आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे, हाउ डू बायोटिक कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट इन एन एनवायरनमेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग कंपोनेंट्स। तो आपने 1 बाय 1 हर बायोटिक कंपोनेंट का रोल बताना है एक एनवायरनमेंट में। फिर आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, एबायोटिक कंपोनेंट्स आर ऑल लिविंग, नॉन लिविंग, इज देयर एनी कंपोनेंट विदाउट विच लाइफ कैन नॉट बी डिस्टर्ब्ड, डिस्क्राइब अबाउट इट, अदरवाइज गिव रीज़न। अब आपने एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े, सारे के सारे 5 एबायोटिक फैक्टर्स थे। आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से इन 5 में से कौन सा एबायोटिक फैक्टर है जो कि अगर ना हो तो हमारी लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर आप ऐसा कोई एबायोटिक फैक्टर तलाश कर लेते हैं तो आपने बताना है कि उसके ना होने से हमें क्या नुकसान नहीं होगा। और अगर आप कोई भी ऐसा एबायोटिक फैक्टर तलाश नहीं कर पाते तो आपने रीज़न बतानी है कि आपने इन 5 में से किसी भी एबायोटिक फैक्टर्स को कैटेगराइज क्यों नहीं किया एक नॉन इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर के तौर पे। सो ये 4 सवाल आप पेज 45 में से सॉल्व करेंगे जो आपके एसएलओ से रिलेटेड है। हमारा आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, कंपेयर करेंगे बल्कि डेजर्ट एनवायरनमेंट को और रेन फॉरेस्ट की एनवायरनमेंट को। अल्लाह हाफिज़।